Yes, everyone. Welcome to our summer internship on computer vision and image processing. Here we are going to use the deep learning based algorithms for creating our projects. Since the duration of this internship is quite short, therefore, in today's session we are going to see some of the snapshots regarding the AI, ML, or DL. Generally, in AI, ML, and DL, we make the machine. Our main goal is to make the machine intelligent enough so that the machine will have the capability in solving the problem. They will have the decision-taking capabilities. They will have the self-awareness. Generally, AI is broad concepts. It is a broad concepts, and machine learning is a subset of the AI, and the deep learning is the subset of the machine learnings. In the example of this artificial intelligence machine can be like Amazon speaker, that is the Alexa or the Apple speaker Siri, where we generally use the conditional statements to make the machine intelligent. For example, it generally works on the basis of the rule-based technique. For example, if the temperature is greater than 40 degrees Celsius, then what to do? Switch on the AC. And if temperature is less than 20 degrees Celsius, then what to do? Just turn off the AC. Else, do nothing. जो भी चल रहा है उसको चलने दो. Here, this is what the concept of artificial intelligence. By using this rule-based technique, we make the machine smart so that the machine will have some decision-taking capabilities. And in case of the machine learning, we make some predictive models by using the different categories of the algorithm. For example, there are supervised algorithm, unsupervised algorithm are also there. And the supervised algorithms are those algorithms we generally uses the label data sets. It means in machine learning algorithms, we pass the label as well as the data. And the machine will learn the patterns by looking at the labels. For example, if our data set contain the images of the cats, then to the model we pass the image of the cat plus as well as the label CAT cat. By looking at this label and by looking at the pattern in the image of the cat, the machine will come to know that yes, the cat look like this. Again, it will see the next image. There will also be some labels. Then, by looking at label as well as the data sets, the machine will learn the patterns. It means here we are using the data set as well as the label. And the sum of these supervised learning based algorithm are SVM, linear regression, logistic regression, random forest decision tree, SVM. And the next type of the learning inside the machine learning is unsupervised machine learning concepts, where we generally remove the label part. We just use we just use the data sets. And in data sets, the machine will try to seek some patterns. And on the basis of the size, shape, and the texture, the machine will learn some patterns. For example, the clustering algorithms falls under the category of this unsupervised learning. It means the clustering algorithm will generally works on the basis of the similarity. If the objects in the data sets are similar enough, then it will make the cluster of each and every similar objects. For example, the cat images they appear to look same, so it will make the cluster of the cats. डॉग में थोड़ा सा अलग सा दिखाई देते हैं तो डॉग का अलग क्लस्टर बनेगा और जो थोड़े से डिसिमिलर है तो उस ऑब्जेक्ट को वो अलग क्लस्टर में रख देगा इट मींस ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटी द क्लस्टर आर created. This is how the unsupervised learning based algorithm will works. On the basis of the shape, size, and texture, the machine will give some predictions whether the object belongs to the category A, category B, or the category C. The example of this type of algorithms are k-mean clustering, DB scans, principal component analysis. They are some of the unsupervised learning algorithms of the machine learning. Next is the reinforcement learning. This type of the learning
The machine will learn on the basis of the reinforcement. It means if the machine will perform better, we'll give him the positive reinforcement. If the machine will not perform better, we'll give him the negative reinforcement. It means on the basis of the user feedback, the machine will learns. A machine will learns, it will improve itself. For example, you are teaching the robot how to walk. अगर रोबोट अच्छा चलता है तो हम उसे पॉजिटिव पॉइंट देंगे, प्लस पॉइंट देंगे। अगर रोबोट अच्छा नहीं चलता है देन विल गिव हिम द नेगेटिव पॉइंट्स। अगली बार क्या होगा, रोबोट हमेशा वही मूव करेगा जिस मूव से उसको क्या मिले हैं, प्लस पॉइंट्स वगैरह मिले हैं। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव reinforcement, the machine will try to improve itself. It means it will always select only those actions from which it will receive the positive reinforcement. Next is the deep learning based concept. This is the main algorithms that we are going to use. And deep learning generally they are inspired from the human brains. Deep learning uses the artificial neural network based concepts. The human brain, there are the natural neurons, but in deep learning we use the artificial neural network which are similar to the human natural neurons. And these deep learning based algorithms models are generally used for the different purpose like the cancer tumor detection, music generation, image coloring, object detections. They are the some of the application of this the deep learning based algorithm. This is the architecture how the deep learning based algorithm generally works. And then this slide depicts the working strategy of the machine learning and deep learning. In generally in machine learning, the feature engineering part, that is the feature extraction part, is manual, whereas in case of this deep learning, this part is removed. It means if we use the machine learning algorithms, then at that time, we have to extract each and every features from the data sets. And after extracting that features, we have to pass that extracted features to the algorithm. For example, the algorithm can be supervised algorithm or unsupervised algorithm. And this algorithm will give some predictions. It means here in machine learning based concept, the feature engineering part is manual. We have to extract each and every features from the data sets. But in case of deep learning, this feature engineering part is omitted. It is removed. Here we do not have to extract the features manually. As the data set slides from the different layers of the neural networks, the features are automatically extracted and learned. This is the benefit of the deep learning based technique. Introduction to deep learning. Yeah, this deep learning generally use the neural network based concept to learn the patterns from the data sets, and it is similar to the neural networks of the human brain. And as the data sets slides from the different layers of the neural networks, the patterns are automatically extracted and learned by using the convoluted operation, which is the dot product between the image and the kernel size, that is the filter size. And here in deep learning, we use this deep learning for the classification, prediction, or the generation or or representation learning. In deep learning, we use the deep neural network layers. It means we have many neural network layers. The early layers, they generally extract the simple features from the image. As the image further passes to the deeper layers, then more complex patterns are again learned from the image. Nick, these are the some of the applications of the deep learning based concept. For example, it is used in the computer vision, and for computer vision, they are used for the object detection and recognition. It means what type of the object are present in the image, whether the image contains the cat, dog, lion, elephant, or persons. Similarly, it can also be used for the image classification. It means whether the image contains the cat, dog, or lion. Next is for image segmentation or image enhancement के लिए भी यूज होता है डीप लर्निंग।
नेक्स्ट इज द एनएलपी, दैट इज द टेक्स्ट बेस्ड प्रोसेसिंग के लिए भी हम लोग यूज करते हैं डीप लर्निंग बेस्ड कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक टेक्स्ट जनरेशन या समराइजेशन, और वी कैन आल्सो यूज द डीप लर्निंग फॉर लैंग्वेज ट्रांसलेशन और द स्पीच रिकॉग्निशन। Similarly, for reinforcement learning, also we use the deep learning based concepts. Next, the types of the deep learning layer. Generally, these is the neural network structure, deep learning structures. Here, these are the input layers. This layer accepts the input input, and once the input are received, they are forwarded to the multiple hidden layers. And once these hidden layers extract the features from the data sets, then that feature are further passed to the output layer. Generally, the output layer contains the classifier, and the task of this classifier is to the classify the data, whether the data belongs to the category A or the category B or the category C. Training of the deep neural network. Generally, it follows this cycle. First is the input data. The model processes the training data such as the image, text, or videos. Then next is the prediction. The network generates an output or prediction. It means this networks first it will receive the input from this layer, and then after that it will give some prediction whether it belongs to the category A or category B or category C. Then after that, on the basis of this prediction and the original ground truth, they are compared with each other and a loss is calculated. And according to according to this loss function, the weight of the model is adjusted. For example, if the value of this loss is small, then it means the model is giving the correct predictions. And if the value of this loss is higher, then it means the model is giving a wrong prediction. And on the basis of this loss value, the weight of the model will be adjusted. It means the machine will learn the patterns. Now, next, generally, if we see the types of the deep learning models, we have the convolution neural networks. Generally, CNN we use for the image or the video analysis. And similar next is the recurrent neural network. They are generally used for the sequential data. It means the data के बीच में जो भी मतलब कनेक्टिविटी है, जो भी कनेक्शन है, अगर उसको भी हमें रीड करना है, तो उस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन एक्टिविटी रिकॉग्निशन, ह्यूमन एक्टिविटी रिकॉग्निशन करना है मुझे, वेदर वीडियो में फाइटिंग हो रहा है या फिर जंपिंग हो रहा है या फिर रनिंग हो रहा है, इस चीज के लिए मुझे क्या चाहिए, दो इमेज के बीच में कनेक्टिविटी होना चाहिए। यानी कि एक इमेज में ऑब्जेक्ट कहाँ पे था और सेकंड इमेज में ऑब्जेक्ट कहाँ तक चला गया है, कहाँ से लेके कहाँ तक। तो इट मींस द ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड द सर्टेन डिस्टेंस। ये मोशन वाले फीचर को मुझे रिकॉर्ड करने हैं दो फ्रेम के बीच के, तो उसके इससे मुझे यूज करना पड़ता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। इट मीन द सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन जो फ्लो हो रहे हैं दो इमेज के बीच में, उसको भी मुझे रिकॉर्ड करना है। देन एट दैट टाइम आई विल बी यूजिंग दिस आरएनएन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स दैट आल्सो कंटेन द एलएसटीएम। थोड़ा सा एलएसटीएम थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है आरएनएन का। नेक्स्ट है ऑटो इनकोडर्स। ऑटो इनकोडर्स आर जनरली यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन लर्निंग। इट मींस अगर मुझे कुछ चीज जनरेट करने हैं तो उस केस में मैं यूज करूंगा ऑटो इनकोडर्स। जनरली ऑटो इनकोडर्स में क्या होता है, देयर आर इनकोडर एंड डिकोडर। द टास्क ऑफ द इनकोडर इज टू इनकोड the input data what it is receiving, and the task of the decoder is to decode the encoded representation। जो भी रिप्रेजेंटेशन इनकोड किया गया है इनकोडर ने, उस चीज को फिर से डिकोड करना, यानी कि उसी चीज को वापस लेके जाना ओरिजिनल फॉर्म में। तो उस केस में मैं यूज करता हूँ ऑटो इनकोडर बेस्ड आर्किटेक्चर। सिमिलरली the deep learning models also include the transformers which are generally used for the large language models. Next, the convolution neural network. The This convolution neural network generally we use to learn the spatial features, that is the visual features from the data, and they are specifically used for the image classification of the detection or the image segmentation.
Now, this is the architecture of the convolution neural network. And here, this is the input part. Here we are passing the data sets, and this is the input layer. This is the input layer. This is the fully connected layer, and this is the output layer. This is the output layer. Now here it contains this convolution emulator contains the convolution layer. Generally, the task of this convolution layer is to extract the spatial features, that is the visible features. And next is the ReLU activation function. The task of this activation function is to the task of this activation function is to the task of this activation the task of this activation function is to help in loading the known linearity in the data so that the model will learn the complex relationship, complex data in the image also. Now, next after that, there is the pooling layer. The task of this pooling layer is to reduce the dimension of the image. Now, next is this is the flatten layer. The task of this flatten layer is to flatten your these feature maps into the one dimension vectors. And after the flatten layers, there are the dense layers. And this dense layer we call it as the fully connected layers. And then after that, we have the last the classifier layers. These are the classifiers layers, the classification classifier neurons. And generally, the task of this classifier is to classify the feature maps to the category A, that is the recon, or the category B, or the category C. And yeah, here is this also the another architecture of a convolution neural networks that contains the convolution layers as well as the max pooling layer. As the data passes from this max pooling layer, the dimension of this feature map will be reduced. And here we are using the 2 cross 2 max pooling. It means the dimension of the image will be reduced by 2, just half. Originally, the size of the image was 24 cross 24 here, this step. And when we pass this feature map to the max pooling, the size of this 24 cross 24 feature map will be reduced by half. Half of 24, 24 divided by 2 equal to 12 cross 12. Now this feature map, the extracted feature will have the size 12 cross 12. Again, if it will pass to the next pooling layer, it will size will be reduced to 8 cross 8 here. I think here some padding is absent due to this. The size is not equal to 6 cross 6. Now this depicts the how the neural network will detect recognize some objects in a image. For example, here this is the input layer that accepts the inputs. These are the convolutions layers that accepts the input from the data sets. And after accepting these inputs, they are forwarded to the hidden layer. The hidden layer contains the multiple CNN layers, and then after that, these output are forwarded to the classifier layer, and this classifier will give some predictions. This is the activation functions. Regarding the activation functions, like ReLU, which generally helps in learning the non-linearity in the data sets so that the complex relationship can be understood. Next is the fully connected layers. Next is the dropout layer. The function of this dropout layer is to drop or deactivate the certain neurons so that the overfitting will not occur. Overfitting means it means instead of learning the patterns from the data sets, the machine will start to memorize the patterns. Due to this, the accuracy will be better. Accuracy will be higher during the training stage, but at the testing stage, the accuracy will be lower. So in order to solve this, we use the dropout layer. The function of the dropout layer is to reduce the or deactivate certain neurons. If I would say dropout
equal to 0.2. It means the 20 percentage of the neurons will be deactivated. It means they will not take part during the model learning. This is what the dropout is all about. Now here in this slide, it is depicting about the max pooling layer. How the max pooling layer works. Generally, the task of this max pooling layer is to reduce the dimension of the image or the feature maps that is flowing through the neural networks. First, here uh, I have the feature map. These are the features that has been extracted from the image. It has the dimension 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. It means it is a 4 cross 4 feature maps. Once this feature map is passed to the 2 cross 2 filter, it means the size of this feature map will be reduced by 2. Then 4 divided by 2 equals to 2. It means 2 cross 2 feature will be generated from the 4 cross 4 feature map. This is the max pooling. So this max pooling will select the maximum value. For example, from here, from this block, it will select this is a 2 cross 2 filter. This is the 2 cross 2. This is the 2 length, 2 breadth. From this, it will select the maximum value because it is a max pooling. Here the maximum value is 0.5, so here it will be 0.5. And here in this block, the maximum value is 1.6, so it will select the 1.6. Here the maximum value is 0.4, so it will select the 0.4. Here the maximum value is 1.7, so it will select the 1.7. This is the strategy how the max pooling layer generally works. There are different types of the pooling layers. For example, average pooling is also there, sum pooling is also there. And in average pooling, we find the average, whereas in sum pooling, we find the sum of the values and keep it here. This is how the max pooling, average pooling, and sum pooling will works. In max pooling, we determine the maximum value. In average pooling, we'll find the average. In sum pooling, we'll add the each and every pixels and write the sum parts. And this is the this represents the convoluted operations that is going on between the feature maps and the kernel site. Here, this is the 4 cross 4 kernel, and this is the 4 cross 4 feature map, and I am selecting the kernel, this dark part. It is a 3 cross 3 kernel. I am sliding the 3 cross 3 kernel over the 4 cross 4 feature map, and when this kernel will slide, this value will be kept here. It means from this 4 cross 4 feature map, I am obtaining the final feature, that is the 2 cross 2 feature map. Let us see here. This is the same thing, the convoluted operation which we have seen here. This is Let us consider this is the image of 32 cross 32 size. This is the 32 length. This is the 32 breadth. It means it has the 32 rows of pixels and it has 32 columns of the pixels. Let us consider this value is something like this. Then uh, when we pass this feature map to the convolution layer, and the convolution layer contains some kernels. We will specify the 3 cross 3. Then 3 cross 3 kernel will slide over this feature maps, and there will be the dot product between this 3 cross 3 matrix and between this 3 cross 3 kernels. And जो भी वैल्यू डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आएगा उसको उठा के हम लोग यहाँ पे रखेंगे. उसके बाद फिर से थोड़ा सा इमेज इधर स्लाइड होगा, फिर से जो भी प्रोडक्ट होंगे वो वैल्यू यहाँ पे उठ के आएंगे. दिस इज व्हाट वी कॉल द कन्वोल्यूटेड ऑपरेशन. Convolution neural network में generally we extract the spatial features, visual features, and the visual features are extracted using the convoluted operation. This is what the convoluted operation is. These convoluted operation are extracting the spatial features, visual features from these images. जैसे कि पहला लेयर है वो थोड़ा सा कुछ
और सिंपल फीचर वगैरह एक्सट्रैक्ट करेगा, जैसे कि एजेस वगैरह, बाउंड्री वगैरह को एक्सट्रैक्ट करेगा। और जैसे जितना जितना हम लोग लेयर ऐड करेंगे, जितनी ज्यादा लेयर रखेंगे CNN के, उतने ही डीपर लेयर्स क्या करेंगे, उतने ही डीप फीचर वगैरह एक्सट्रैक्ट करते करते जाएंगे इमेज से। ठीक है। तो दिस इज व्हाट द कन्वोल्यूटेड ऑपरेशन इज। ये ऐसे ये काम करता है, सेम चीज है ये कन्वोल्यूटेड ऑपरेशन यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जो चीज है ये यहाँ पे इसके ऊपर स्लाइड हो रहा है। पहले ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दो मैट्रिक्स है, 3x3, और ये 3x3 का मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन होके ये फीचर उठ के यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वोल्यूटेड ऑपरेशन बिटवीन द 3x3 कर्नल एंड 5x5 इनपुट फीचर मैप। जो भी हमारे पास फीचर मैप्स है, फीचर मैप मीन्स हम लोगों ने इमेज से जो भी फीचर वगैरह एक्सट्रैक्ट किए थे कन्वोल्यूशन लेयर से, जो भी आउटपुट आया था लेयर का, तो उसी को बोलते हैं फीचर मैप। ये वही फीचर मैप है। इस फीचर मैप में स्लाइड हो रहा है एक कर्नल, और एक कर्नल से हमें फीचर वगैरह उठ के यहाँ पे आ रहे हैं। This is again the same thing. Here we are sliding the 3x3 kernel on 5x5 image. तो ये चीज है, यहाँ पे फीचर वगैरह ऐसे उठ के आते हैं। ऐसे काम करता है कन्वोल्यूटेड ऑपरेशन। इसी ऑपरेशन की बदौलत उसको मिलते हैं स्पेटियल फीचर्स जो भी डेटा में होता है। नेक्स्ट ये क्या चीज है, ये है ड्रॉप या ड्रॉप आउट। यस, इट मींस इट विल हेल्प्स यू इन combating the overfitting problems। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सर्टेन न्यूरॉन्स को मैं डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। जो रेड रेड वाले हैं वो न्यूरॉन्स है, इन जैसे ये सारे न्यूरॉन्स है, पर मैंने यहाँ पे सेट किया है ड्रॉप आउट इक्वल टू डेटा कंसीडर 0.2। इट मींस ये सारे न्यूरॉन्स में से 20% ऑफ द न्यूरॉन्स क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे। यानी कि दे विल नॉट टेक पार्ट इन लर्निंग। जो बचे हुए 80% न्यूरॉन्स है वही हेल्प करेंगे लर्निंग में, उनको ही मिलेगा इनपुट इस लेयर से। ठीक है। और जो भी इनको को वैल्यू मिला है वो पास करेंगे नेक्स्ट लेयर को। ठीक है। नेक्स्ट लेयर में हो सकता है और एक और अनदर डेंस लेयर हो, जैसे कि ये वाले डेंस लेयर है, एक और डेंस लेयर हो, या फिर इसमें हो सकता है कि ये अपने आप में क्या है, क्लासीफायर है। अगर क्लासीफायर है तो ये क्या करेगा, क्लासीफाई करेगा टू द कैटेगरी ए। जैसे कि ये क्लासीफाई करेगा कैटेगरी ए में, ये क्लासीफाई करेगा ये वाला न्यूरॉन्स कैटेगरी बी में, ये क्लासीफाई करेगा कैटेगरी सी में, जो भी on the basis of the pattern it has learned. Now here in this slide we are going to see the small implementation about the CNN and fashion analyst datasets. ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन उसमें अमेज डेटा सेट्स का यूजिंग द कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। तो सबसे पहले एमएनइस्ट एक हमारा इनबिल्ट डेटा सेट्स है that is available in the Keras library. So first you have to import that data sets using this command. तो मैंने सबसे पहले एमनिस्ट डेटा सेट को लोड किया है। लोड द डेटा कहाँ से, एमनिस्ट से। फैशन एमनिस्ट ये एक डेटा सेट है, छोटा डेटा सेट से कपड़े का। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको लोड किया और मैंने स्पेसिफाई किया कि कहाँ पे लोड करना है, ट्रेन एक्स, ट्रेन वाई, टेस्ट एक्स, टेस्ट वाई में। ये वाले पार्ट जो ट्रेन एक्स है, ये वाले पार्ट है मैं यूज करूंगा इसको ट्रेनिंग के लिए, और ये वाला जो पार्ट है मैं इसको यूज करूंगा टेस्टिंग के लिए। और ये जो ट्रेन वाई और टेस्ट वाई है, ये क्या है एक्चुअल में, ये एक लेबल्स है। जो भी डेटा सेट मेरे पास पड़ा हुआ है ट्रेन एक्स और टेस्ट एक्स में, उसके करस्पॉन्डिंग लेबल्स है। अगर वो शूज है तो लेबल में लिखा होगा शूज, अगर वो जैकेट है तो उसमें लेबल में लिखा होगा जैकेट। इट मीन्स द लेबल means a name tag given to your data sets। तो यहाँ पे जितने मेरे पास ट्रेनिंग सेट होंगे उतने ही मेरे पास क्या रहेंगे, लेबल वगैरह रहेंगे। ठीक है। जितने टेस्ट सेट है उतने ही उसके करस्पॉन्डिंग लेबल वगैरह रहेंगे। अब ये वाला कोड से मैं क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैटप्लॉट लाइब्रेरी। जनरली द मैटप्लॉट लाइब्रेरी इज यूज फॉर द विजुअलाइजेशन परपोज। मान लो कि मुझे अपने डेटा को डिपिक्ट करना है, रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स।
फॉर एग्जांपल बार चार्ट, ग्राफ चार्ट, पाई चार्ट या सिंपल इमेज के फॉर्म में या प्लॉटिंग के फॉर्म में, तो उस टाइम में मैं यूज करता हूँ मैटप्लॉट लाइब्रेरी। तो मैंने इसको ले लिया है एज ए पीएलटी के फॉर्म में। Generally, this NumPy stands for numerical Python, and this NumPy is used to handle the array operation or any mathematical operation। ठीक है, मशीन लर्निंग की जो मॉडल जो ट्रेन हो रहा है उसको स्मूथ करने के लिए, फास्ट ट्रेनिंग के लिए मैं यूज करता हूँ NumPy लाइब्रेरी। तो मैंने सबसे पहले इसको प्रिंट किया, मैंने चेक किया कि इसके साइज कितने हैं। इसके लिए मैं लिखूंगा ट्रेन एक्स डॉट शेप, ट्रेन वाई डॉट शेप, टेस्ट एक्स डॉट शेप, टेस्ट वाई डॉट शेप। तो ट्रेनिंग सेट मेरे पास है 60,000 इमेजेस है, और इसके डिमेंशन है 28 क्रॉस 28। इट मींस ईच एंड एवरी इमेज इन द ट्रेन एक्स एंड टेस्ट एक्स हैज द डिमेंशन ऑफ 28 क्रॉस 28। तो यहाँ पे ट्रेनिंग सेट का यही इसका लेबल है। तो 60,000 इमेज है मेरे पास, तो मेरे पास 60,000 लेबल भी है, कैट, जैकेट, शूज वगैरह लिखे हुए हैं। ये है टेस्टिंग सैंपल्स। टेस्टिंग सैंपल मेरे पास है 10,000, और इनके भी डिमेंशन है 28 क्रॉस 28। ठीक है, नेक्स्ट इस लाइन से मैंने प्रिंट कर दिया कि टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं। यानी कि मेरे डेटा सेट्स में है टोटल 10 कैटेगरी ऑफ द classes। 0 represent one class, 1 represent another class, 2 represent the another class, and the 3 represent the another class। It means मैं अपने क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट है उसके बाद ये दिस लाइन ऑफ द कोड इज यूज्ड फॉर द प्लॉटिंग। मैंने यहाँ पे मैटप्लॉट लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है पीएलटी के फॉर्म में। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पी वाई प्लॉट एज पीएलटी। अब पीएलटी डॉट फिगर लिखूंगा मैं, यानी कि मैंने अब स्पेसिफाई कर दी कि डिमेंशन शुड बी 5 क्रॉस 5। यानी कि ये जो पूरा इमेज है इसका डिमेंशन होने चाहिए 5 इंच लेंथ में और 5 इंच ब्रेथ में होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि सॉफ्ट प्लॉट ये होने चाहिए 1 to 1, यानी कि ये वाला पार्ट, और 1 to 2 दूसरा ये वाला पार्ट। ये फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे 2 लिखा है तो ये सेकंड कॉलम है। सेकंड कॉलम में मुझे ये चीज दिखाओ टेस्ट वाला, और फर्स्ट कॉलम में दिखाओ मुझे ट्रेन वाला इमेज। दिस इज द इमेज, और इसकी ग्राउंड ट्रूथ वैल्यू है 9, यानी कि इसकी लेबल है, इसका लेबल सूज का लेबल है 9। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लेबल को रिप्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। आप लोग कुछ भी चीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसके फॉर्म में, या फिर ग्राउंड ट्रूथ या फिर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे प्रिंट की कि इसके शेप कितने कितने हैं, वही सेम चीज है यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिए। नाउ आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे किए है डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसको रिसीव कर दिया मैंने। ठीक है, -1 28 1। इट मीन्स अभी मेरा यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है मेरा, अभी मेरा आउटपुट था, मैं इसको लेके आ रहा हूँ, इसके पीछे -1 का मतलब है कि मैं एक चैनल यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, 1। इट मीन्स मैं एक 1 का मतलब होता है ये है एक ग्रे स्केल इमेज। आरजीबी जो इमेज है उसकी वैल्यू होती है चैनल हमेशा 3 आरजीबी, यानी कि उसमें 3 चैनल है। तो अगर ग्रे स्केल इमेज है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, तो नंबर ऑफ द चैनल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो मैं इसको यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ इससे। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मलाइजेशन। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया फ्लोट 32 के फॉर्म में, यानी कि 32 वैल्यूज वगैरह रहेंगे। तो नेक्स्ट है मैंने इसको डिवाइड किया 255 से। अब 255 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पिक्सल इंटेंसिटी इन इमेज इज 255। इमेज में पिक्सल है, इसी इमेज का डिमेंशन है 28 क्रॉस 28। इट मीन 28 रोज है और 28 कॉलम्स है। तो एवरी सेल, एक जो पिक्सल है जितना भी 20 रो में कितने हैं 28 पिक्सल्स है, और कॉलम में भी 28 पिक्सल है, और एवरी पिक्सल की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 255। तो अभी मैं इसको नॉर्मलाइज करूंगा बाय डिवाइडिंग इट विथ 255। अब इससे क्या हो जाएगा, एवरी पिक्सल की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी 0 और 1 के बीच में, 0.2 या 0.25, 0.236, 0.219, 0.32,
ऐसे करके कुछ वैल्यू 0 और 1 के बीच में रिड्यूस हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा कि न्यूरल नेटवर्क में जो प्रोसेसिंग जो हमारा हो रहा है, जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी है, वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वैल्यू सारे रिड्यूस हो गए 0 और 1 के बीच में। अगर मैं इसको रिड्यूस नहीं करूंगा तो पिक्सल की वैल्यू कितने रहेंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है 255 तक, 0 से लेके 255 के बीच में, 233, 244, 255। तो ये बहुत बड़े वैल्यू वगैरह है। तो इतने बड़े वैल्यू वाले इमेज को अगर हम लोग डायरेक्टली न्यूरल नेटवर्क में पास करेंगे तो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज द कॉस्ट, टाइम एंड मेमोरी हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, मॉडल थोड़ा लीड से ट्रेन होगा। ठीक है, तो इसीलिए फॉर द स्मूथ ट्रेनिंग, फॉर द फास्टर ट्रेनिंग, वी आर नॉर्मलाइजिंग द इमेज विद बाय डिवाइडिंग विद 256। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद मैंने यहाँ पे किया, आई एम यूजिंग द ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब जनरली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, मैं इसको डेटा सेट्स को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है, अभी फिलहाल मेरे पास ट्रेनिंग सेट है और टेस्टिंग सेट्स है। यहाँ पे ये जो प्रीवियस कोड था, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ट्रेनिंग सेट है और टेस्टिंग सेट है, और वैलिडेशन के लिए कोई भी सैंपल मेरे पास अभी तक नहीं है। तो मैं अब क्या करूंगा, वैलिडेशन के लिए भी मुझे कुछ सैंपल चाहिए। तो मैं वैलिडेशन सैंपल जनरेट करने के लिए मैं यूज करूंगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो मैंने यहाँ पे बताया कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में किसको स्प्लिट करना है, जो ट्रेन अंडरस्कोर एक्स है, इसको स्प्लिट करो और कहाँ पे रखो, ट्रेन एक्स और वैलिडेशन एक्स में रखो इसको। ठीक है, सिमिलरली जो ट्रेन वाई है, इसको थोड़ा सा कुछ डिवाइड करो, इसको भी थोड़ा सा इसका सैंपल कुछ ट्रेन लेवल में रखो और वैलिडेशन लेवल में रखो। और कितना सैंपल रखना है, इज कहाँ से पता चलता है, यहाँ से टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2। इट मींस द 20% ऑफ द सैंपल विल बी गो विल बी मूव टुवर्ड द वैलिडेशन, यानी कि इसके जो पार्ट है 80% जाएंगे यहाँ पे, और इसी के 20% जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली इसी की 80% जाएंगे यहाँ पे, और इसी के 20% जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहाँ मान लो कि मेरे पास कितने इमेज है, 1000 इमेज है। अगर 1000 इमेज होते ट्रेन एक्स के अंदर, तो 20% का मतलब है यहाँ पे मेरे कितने जाते, 800 इमेज जाते, और यहाँ पे 200 इमेज जाते। और लेवल भी सिमिलरली यहाँ पे 800 लेवल जाते और यहाँ पे 200 लेवल जाते। इसका मतलब है टी साइज इक्वल टू 0.2। ये कितना भी रख सकते हैं हम लोग, 0.3, 0.4, 0.1, 0.5। टेस्ट साइज 0.5 का मतलब है जस्ट एग्जैक्टली हाफ डिवाइड करो, किसको, इसको और इसको। अगर आधे, इसके आधे सैंपल यहाँ पे रखो ट्रेन एक्स में, इसके आधे सैंपल रखो वैलिड एक्स में। सिमिलरली इसके आधे सैंपल रखो ट्रेन अंडरस्कोर लेवल में, और आधे सैंपल रखो ट्रेन अंडरस्कोर वैलिड अंडरस्कोर लेवल में। अगर यहाँ पे टेस्ट साइज इक्वल टू 0.5 होता। ठीक है, नेक्स्ट है रैंडम स्टेट इक्वल टू 42। 42 मीन्स मैं इस पार्ट, ये वाला जो कोड है इसको मैं फ्रीज कर रहा हूँ। इट मीन्स हर बार अब क्या होगा कि यही सैंपल घुसेंगे, जो सैंपल यहाँ से यहाँ पे घुसे हैं ट्रेन एक्स में, और जो सैंपल वैलिड एक्स में घुसे हैं, वो हर बार वही सैंपल घुसेंगे। चाहे इस कोड को मैं जितनी बार भी रन करूँ, मैं वही सेम सैंपल घुसेंगे, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई कर दिया रैंडम स्टेट इक्वल टू 42, यानी कि मैं अपने कोड को फ्रीज कर रहा हूँ, ताकि हर बार मैं जितनी बार भी कोड को चलाऊं परफॉर्मेंस सेम आए। अगर मैं रैंडम स्टेट 42 के बदले किसी और वैल्यू को लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मेरा कोड फ्रीज नहीं होगा। तो इस वजह से हर बार अलग अलग सैंपल घुसेंगे ट्रेन एक्स में और वैलिड एक्स में। कहाँ से, ट्रेन अंडरस्कोर एक्स से। ठीक है, नेक्स्ट है, उसके बाद मैंने इसकी शेप वगैरह प्रिंट करा दी। अब ट्रेनिंग के लिए कितने हैं, वैलिडेशन के लिए कितने हैं। पहले मेरे पास इमेज थे 60,000, 60,000। अब 20% वाले कहाँ पे घुसेंगे, वैलिड अंडरस्कोर एक्स में, यानी कि जो वैलिड वाला है अब इसमें घुसेंगे 20%। अब 60,000 होते हैं 12,000, तो 12,000 यहाँ पे आ गए। बाकी 80% होते हैं 48,000, तो 48,000 यहाँ पे आ गए। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तभी करना है जब मेरे पास कोई सैंपल वगैरह नहीं होंगे ट्रेनिंग के, टेस्टिंग के लिए या फिर वैलिडेशन के लिए। मान लो कि मेरे पास एक ही फोल्डर है, बस उस फोल्डर में क्या है, वो ट्रेनिंग के लिए है। तो उस केस में अगर मुझे वैलिडेशन सैंपल भी चाहिए, टेस्टिंग सैंपल भी चाहिए, तो मैं उस केस में यूज करता हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जिस वजह से मुझे क्या हो जाते हैं, मेरे ओरिजिनल जो डेटा है वो स्प्लिट हो जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, फिर वैलिडेशन के लिए। और इस कोड को मैं फिर से एक और बार चलाऊंगा,
और जो वैलिडेशन वाले हैं उसी को मैं फिर से स्प्लिट करूंगा वैलिडेशन के लिए प्लस टेस्टिंग के लिए। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग यूज करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। नाउ दिस इज द मॉडल बिल्डिंग फेज। हियर आई हैव यूज्ड द कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स टू बिल्ड माय मॉडल। मैंने यहाँ पे ये लाइब्रेरी वगैरह इंपोर्ट किए हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले मैंने अब बता दिया कि इनपुट लेयर में इनपुट वगैरह जो होंगे वो एक्सेप्ट होने चाहिए 28x28 में। इट मींस द साइज ऑफ द इमेज डिमेंशन शुड बी 28x28। और ये जो है इसका चैन नंबर ऑफ द चैनल शुड बी, इट शुड बी 1। ये 1 होनी चाहिए। ठीक है, 1 मींस इट इज अ ग्रे स्केल इमेज। हमारा ओरिजिनल इमेज भी हमारा क्या था, यही डिमेंशन का था, 28x28 का ही था। तो मॉडल को भी हमें कितना चाहिए, बस इतना ही इमेज चाहिए, 28x28 क्रॉस 1। 1 मीन्स इट शुड एक्सेप्ट द ग्रे स्केल इमेज। ठीक है, अगर मुझे आरजीबी इमेज चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्री। ट्री मीन्स द कलर इमेज, दैट इज द आरजीबी। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कन्वोल्यूशन लेयर। ठीक है, ये वही ये कर्नल है, ट्री क्रॉस ट्री कर्नल। अब ये ट्री क्रॉस ट्री कर्नल क्या करेगा, यहाँ पे कॉन्वोल्यूटेड ऑपरेशन चलेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्वोल्यूटेड पॉइंट, अब ये क्या होगा, ये ट्री क्रॉस ट्री कर्नल, अब ये क्या होगा, ये ट्री क्रॉस ट्री कर्नल ये स्लाइड करेगा इस 28x28 इमेज के ऊपर। ठीक है, और कॉन्वोल्यूटेड ऑपरेशन के थ्रू जो फीचर वगैरह एक्सट्रैक्ट करेगा, जो डॉट प्रोडक्ट जो चल रहे हैं, ठीक है, उससे फीचर वगैरह एक्सट्रैक्ट होंगे। और मैंने उसके बाद यहाँ भी स्पेसिफाई किया है, उसके बाद रेलू फंक्शन किया, एक्टिवेशन फंक्शन। और रेलू फंक्शन क्या करेगा, मुझे कुछ कॉम्प्लेक्स फीचर वगैरह भी मुझे उठाने हैं, नॉट ओनली द लीनियर फीचर। ठीक है, कुछ नॉन लिनियरिटी को सेट करने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि इमेज हमेशा थोड़ा सिंपल फीचर उठाऊं मैं, अलग अलग फीचर हो सकते हैं इमेज में, तो कॉम्प्लेक्स फीचर को उठाने के लिए मैं रेलू एक्टिवेशन फंक्शन यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पैडिंग इक्वल टू सेम। इट मींस द डिमेंशन वगैरह इमेज के क्या होने चाहिए, सेम वगैरह मिलने चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये जो इनपुट है, ये इनपुट यहाँ पे मैंने पास किया है। ठीक है, और ये जो आउटपुट आएगा, इसका जो कन्वोल्यूशन लेयर का आउटपुट आएगा वो कहाँ पे आएगा, वो एक्स वाले वेरिएबल में जाएगा। और इसी एक्स वाले वेरिएबल को पास किया है मैंने यहाँ पे एक्स में, यानी कि ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा मैक्स पुलिंग में। यानी कि ये मैक्स पुलिंग मैंने कौन सी यूज किया है, यहाँ पे यूज किया है 2x2। यानी कि अब सीधा 28 का कितना होगा, आधा होगा, 28 डिवाइड बाई 2 डेट इज द 14। 14x14 यहाँ पे आ गया, यानी कि मैक्स पुलिंग का आउटपुट आएगा 14x14। और यहाँ पे मैंने 32 फीचर चाहिए थे मुझे, 32 फीचर, तो यहाँ पे इसने 32 फीचर वगैरह उठा दिए, किससे, 28x128 से। ठीक है, तो ये फीचर वगैरह इसको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, फिर से मैंने जो भी इसका आउटपुट आया है ये सेव होंगे इस एक्स वाले वेरिएबल में, और इसी को फिर से पास किया मैंने नेक्स्ट कन्वोल्यूशन लेयर में। फिर जो भी इसका आउटपुट आया है उसको मैंने पास किया मैक्स पुलिंग में। ठीक है, तो उसके बाद मैंने इसको मैंने फ्लैटन कर दिया इस वाले लेयर में, या इस फ्लैटन लेयर से क्या होगा, ये 1 डिमेंशन वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला मैक्स पुलिंग का वैल्यू आया था मुझे 7x7x64। अब मैं 7x7x64 को मल्टीप्लाई करता हूँ ये वैल्यू, तो इसके वैल्यू आते हैं 3136। यानी कि एक 1 डिमेंशन वेक्टर में ये कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, बाय यूजिंग द फ्लैटन लेयर। इसका काम ये है कि हमारा जो भी फीचर मैप थे, जो 7x764 थे, उसको फ्लैटन करो 1 डिमेंशन वेक्टर में, जिस बदौलत मुझे मिल गए हैं 3136 फीचर्स। ठीक है, तो उसके बाद मैंने पास किया है इसको डेंस लेयर में। जो फुल मेरा ये जो फुल्ली कनेक्टेड लेयर होता है, ये हमेशा स्टार्ट होता है फ्लैटन लेयर के बाद। ठीक है, तो ये अंदर के ये हिडन लेयर्स वगैरह है, ये फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 ही कन्वोल्यूशन लेयर ही रखे हैं, आप चाहो तो कितना भी कन्वोल्यूशन लेयर वगैरह रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अब डेंस लेयर में रखे हैं मैंने 128 न्यूरॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे रेलवे एक्टिवेशन फंक्शन रख दिया है, और मैंने यहाँ पे ड्रॉप आउट कर दिया है 0.5। इट मीन्स 50% ऑफ द न्यूरॉन्स क्या होंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे, तो कोई भी लर्निंग में पार्ट नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और बचे हुए 50% न्यूरॉन्स ही क्या करेंगे, लर्निंग में हेल्प करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लास्ट लेयर में, ये मेरा है आउटपुट लेयर, यानी कि क्लासिफायर। तो इस क्लासिफायर में मैंने सेट कर दिए हैं इसके वैल्यू 10। अब 10 से क्यों, ये 10 इसलिए ही है क्योंकि मेरे पास जो डेटा सेट्स है उसमें, उस डेटा सेट में एमनेस के डेटा सेट में 10 कैटेगरी के क्या है, आइटम्स है। एक शूज हो सकता है, एक जैकेट हो सकता है, दूसरा पता नहीं क्या क्या चीज है, टोटल 10 कैटेगरी के आइटम्स है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है क्लासिफायर, नंबर ऑफ द न्यूरॉन्स इन द लास्ट क्लासिफायर शुड बी 10।
तो सिंस दिस इज द मल्टी क्लासिफिकेशन, मैं मल्टीपल क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, तो मैंने लास्ट में एक्टिवेशन फंक्शन ले दिया है softmax, विच इज आवर मल्टी क्लासिफिकेशन एक्टिवेशन फंक्शन। अगर ये बाइनरी होता, यहाँ पे वन होता, ट्रू और फॉल्स, आइदर ब्रेन ट्यूमर यस या नो, ऐसा कुछ होता, तो उस केस में यहाँ पे लेता सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन। और इस आउटपुट लेयर को कहाँ से आउटपुट मिल रहे हैं, यहाँ से एक्स से, और ये एक्स मैंने यहाँ पे पास कर दिया, जो ड्रॉप आउट का जो भी आउटपुट आया था। तो उसके बाद अब मैंने क्या किया, एक मॉडल को मैंने बिल्ड कर दिया, मैंने मॉडल बना दिया। अब ये सारे को मैंने ऐड कर दिए। पहले इनपुट, ये वाला इनपुट में यहाँ इनपुट होना चाहिए, और आउटपुट में क्या आना चाहिए, ये वाला आउटपुट। जो भी आउटपुट वाली वैल्यू है ये यहाँ पे रख दे मैंने आउटपुट्स, ठीक है। तो ये मेरा बन गया मेरा मॉडल। अब मैंने दिखा दिया इसका फैशन मॉडल डॉट समरी, मेरा मॉडल का नाम है फैशन अंडरस्कोर मॉडल। अब इसकी समरी के लिए मैंने समरी लिखा, तो ये प्रिंट हो गया इसके समरी। ये इंटेल पूरा आर्किटेक्चर का ये डिजाइन है, ये मतलब कैसा बना है ये सीनन का मॉडल। तो इसमें टोटल पैरामीटर्स है सैकड़ा हजार दस हजार लाख 4,21,642 पैरामीटर्स है इसमें। यानी कि टोटल पैरामीटर्स इतने होंगे, जिनमें से कितने ट्रेन हो रहे हैं, सारे के सारे पैरामीटर, यानी कि 4,21,642 पैरामीटर ही पूरे के पूरे पैरामीटर क्या करेंगे, ट्रेनिंग के लिए मैं यूज करूंगा। नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स, यानी कि जो ट्रेन नहीं होंगे, वो कितने हैं, वो कुछ भी नहीं है, वो सुनना है, ठीक है। यानी कि सारे पैरामीटर वगैरह मेरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ट्रेनिंग में, ठीक है। ये 4 लाख पैरामीटर है, तो इट मीन्स दिस इज दिस इज अ वेरी लाइट वेट मॉडल। अब जनरली जो ओवरफिटिंग वाली जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे यहीं पर यहीं से पता चलता है। अगर मेरा डेटा सेट काफी ज्यादा बड़ा है, काफी हैवी है, तो मुझे हमेशा यूज करने चाहिए हैवी मॉडल्स, जैसे कि ये है ना, जैसे कि 4 पैरामीटर्स भी मुझे ज्यादा ज्यादा होने चाहिए। अगर मेरा डेटा सेट का साइज काफी कम है, बहुत ही कम इमेज है, और मॉडल मेरा बहुत ज्यादा हैवी हो गया है, ये वाले वैल्यू बहुत ज्यादा है, 40 लाख 4 करोड़ के आसपास में है, डेटा सेट छोटा और मॉडल काफी ज्यादा हैवी वेट हो गया, तो इस केस में ओवर फिटिंग होती है। यानी कि मॉडल विल ट्राई टू मेमोराइज इंस्टेड ऑफ लोडिंग द पैटर्न्स, बट our main goal is to help the machine to learn the pattern, not to memorize the patterns। रट्टा मारना नहीं सिखाना है, लर्न करना सिखाना है, ठीक है। अब अंडरफिटिंग का कॉन्सेप्ट भी सेम, जस्ट वाइस वर्सा है। अगर डेटा सेट का साइज बहुत बड़ा है और मॉडल हमारा क्या है, काफी लाइट वेट है, तो अंडरफिटिंग हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डेटा सेट छोटा है, तो वेट भी उसके उसको लाइट वेट बनाने पड़ेंगे मॉडल को। अगर हमारा डेटा सेट हैवी है, तो मॉडल को भी हमें हैवी वेट बनाने पड़ेंगे। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग इज। जनरली हम लोग ओवरफिटिंग और ओवरफिटिंग को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द ड्रॉप आउट लेयर, या फिर कुछ L1 L2 रेगुलराइजेशन फंक्शंस, या फिर अगुमेंटेशन टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अगुमेंटेशन टेक्निक यूज तो नहीं किया है, ठीक है। अगुमेंटेशन टेक्निक जनरली इज यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ योर डेटा सेट्स के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। मॉडल की जनरलाइजेशन और डिस्क्रिप्टिव कैपेबिलिटी है, उसको इनहांस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेटा अगुमेंटेशन टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैंने अब ये सारे मॉडल को, जो फैशन मॉडल बनाया था, उसको मैंने कंपाइल कर दिया, मैंने ऑप्टिमाइजर यहाँ पे एडम लिख दिया, और मैंने यहाँ पे बताया नहीं ये लर्निंग रेट कितना है। ड्यू टू दिस द मॉडल विल चूज द डिफॉल्ट लर्निंग रेट विच इज 0.001। यानी कि एडम की डिफॉल्ट लर्निंग रेट यही होती है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वल टू एक्यूरेसी लिख दिया, यानी कि मुझे एक्यूरेसी वाली चीज यहाँ पे दिखाने हैं, ठीक है। तो अब ये वाला जो पार्ट है, जब मॉडल कंपाइल हो गया, तो इसको मैंने ट्रेन कर दिए यूजिंग दिस फिट फंक्शन। तो मैंने इस फिट फंक्शन मैंने पास किए हैं ये डेटा सेट, जो मेरा ट्रेन एक्स है, और ये उसका करस्पॉन्डिंग लेबल है। और वैलिडेशन के लिए मैंने पास कर दिया वैलिडेशन इमेजेस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग लेबल। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है बैच साइज शुड बी 64। इट मीन्स 64 के बैच में पास होंगे डेटा सेट, कहाँ पे, इस मॉडल में। यानी कि एक बार में 64 इमेज 64 इमेज 64 इमेज 64 इमेज 64 इमेज करके पास होंगे इसको मॉडल के अंदर, ठीक है। यानी एक एक करके नहीं जाएंगे इमेज, बैच में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे, 64 64 64 64 64 64 जाएंगे। कब तक, जब तक 10 लूप कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी कि 10 इनपुट्स कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, तब तक ये डेटा सेट वगैरह पास होते रहेंगे। जैसे कि मेरे पास कितने इमेज है, अभी ट्रेनिंग में थे मेरे पास 48,000 इमेज,
तो 48 इमेज कैसे पास होंगे, 64 करके 64 करके पास होंगे। जब सारे इमेज पास हो जाएंगे तो एक इपोक्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि लूप 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर से लूप 2 आएगा। लूप 2 में फिर से क्या होगा, 64 करके इमेज पास होंगे जब तक सारा इमेज कंप्लीट नहीं हो जाएगा। जब सारा इमेज कंप्लीट हो जाएगा, पास हो जाएगा मॉडल से, उसके बाद फिर से नेक्स्ट लूप स्टार्ट होगा, लूप 3 यानी कि इपोक 3 स्टार्ट होगा, उसमें भी ऐसे ही करके ही डेटा पास होंगे डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स में। तो मॉडल क्या करेगा, तो जो भी उस एवरी इपोक्स में जो एंड में वो करेगा, प्रिडिक्शन वैल्यू मेजर करेगा, उस प्रिडिक्शन वैल्यू को चेक करेगा ग्राउंड ट्रूथ से, और उसमें मेजर करेगा लॉस वैल्यू कितना है। अगर लॉस वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, इट मींस द रॉन्ग फॉल्स प्रिडिक्शन हो गई हमारे मॉडल से। अगर लॉस वैल्यू कम है, इट मींस हमारे मॉडल ने सही प्रिडिक्शन किए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉस वैल्यू, द मॉडल वेट विल बी ऑप्टिमाइज्ड एंड एडजस्टेड यूजिंग द एडम ऑप्टिमाइजर से। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ इसी में। तो ये यहाँ पे पहले ही बुक्स में इसमें 40% एक्यूरेसी आ रही है। तो जब मैंने इसको 10 बार चलाया तो 93% एक्यूरेसी आ रहे हैं। तो आप लोग कितनी बार भी इसको चला सकते हो। ठीक है, अगर ज्यादा चलाएंगे तो फिर ओवरफिट हो जाता है। तो इसको कम से कम 25 30 50 तक लेके जाना है हमें, 50 तक। ठीक है, नेक्स्ट है अभी मॉडल इवैल्यूएटिंग टेस्टिंग। मैंने मैंने मेरे पास टेस्ट सेट थे, तो टेस्ट वाई। ठीक है, तो ये डेटा सेट है, ये उसका करस्पॉन्डिंग लेवल है, तो इसको इवैल्यूएट किया तो मुझे एक्यूरेसी आ रहे हैं 91%। यानी कि मेरा मॉडल 91% एक्यूरेसी का है। ठीक है, यानी कि 91% तक वो सही बता सकता है, कैटेगराइज कर सकता है कि ये चीज ये वाले कैटेगरी ए के है, ये वाले चीज कैटेगरी बी के है, ये वाले चीज कैटेगरी सी के है। दीज आर द सम ऑफ द प्रिडिक्शन गिवन बाय माई मॉडल। पी का मतलब है प्रिडिक्शन, टी का मतलब है ट्रू वैल्यू। प्रिडिक्शन था एंकल पुट और ट्रूथ पहले थे एंकल पुट, तो इससे ही प्रिडिक्शन हो गया। ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है पुलोवर, तो ट्रू वैल्यू भी था पुलोवर, तो ये भी सही प्रिडिक्शन है। यहाँ पे मैंने इसको प्रिडिक्ट किया है ट्राउजर के फॉर्म में, ट्रू वैल्यू भी था ट्राउजर ही, यानी कि यहाँ करेक्ट प्रिडिक्शन वगैरह हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी शायद गड़बड़ नहीं है, इसमें सारे करेक्ट प्रिडिक्शन वगैरह हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इससे डिपिक्ट हो रहा है कि द जनरलाइजेशन कैपेबिलिटी एंड डिस्क्रिप्टिव कैपेबिलिटी ऑफ आवर मॉडल इज एक्सट्रीमली हायर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड्स में है, दिस इज द प्लॉट ऑफ द ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी जो हमारी जो बढ़ रही है ट्रेनिंग के टाइम में, जो एक्यूरेसी वगैरह पहले 2 इपोक्स में इतना था एक्यूरेसी, 4 इपोक्स में इतना हो गया, 8 इपोक्स में इतना हो गया, 10 इपोक्स में इतना हो गया, ये एक्यूरेसी बढ़ रही है। ये वाली एक चीज जो ग्राफ है हमेशा इंक्रीज होनी चाहिए। सिमिलरली लॉस वाले जो वैल्यू है वो हमेशा रिड्यूस कम कम होने चाहिए, क्योंकि लॉस कम का मतलब है हमारे मॉडल ने क्या किया है, करेक्ट प्रिडिक्शन किए हैं, यानी कि मिस प्रिडिक्शन मिस क्लासिफिकेशन नहीं किए हैं। ये वाले ग्राफ नीचे होने चाहिए और ये वाले ग्राफ हमेशा ऊपर होने चाहिए, जो चीज हमारा हो रहा है। तो इट मीन्स आवर मॉडल इज वेरी रोबस्ट इनफ टू प्रिडिक्ट और टू कैटेगराइज द ऑब्जेक्ट इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज। इसको बोलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये डिस्क्राइब करता है कि द जनरलाइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ आवर मॉडल कितना है। जैसे कि ये वाला चीज देखेंगे, तो ये वाला जो चीज था ये टी शर्ट या टॉप था ये वाला। तो ये वाला चीज यहाँ पे भी टी शर्ट और टॉप है, तो ये दोनों लाइन मैच कर रहे हैं, ये सीधा लाइन, यानी 857 सैंपल को इसने करेक्ट प्रिडिक्शन किया है। ठीक है, टी शर्ट के फॉर्म में। पर इसने शायद यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया है ये वाला चीज, यानी कि एक्चुअल में थे ये टी शर्ट थे 109 सैंपल, पर इसने इसको बोल दिया है कि ये क्या है, ये शॉर्ट है बोल दिया है, तो ये गलत प्रिडिक्शन हो गए। सिमिलरली यहाँ पे मिसक्लासिफिकेशन हो गया है, ये टी शर्ट, ये 6 जो सैंपल थे ये टी शर्ट थे, पर इसने प्रिडिक्ट किया है इसको बैग के फॉर्म में, तो यहाँ पे मिसक्लासिफिकेशन वगैरह हो गया है। पर यहाँ पे इस केस में देखेंगे ये वाला जो सैंपल था, चलो ये वाला सैंपल देखते हैं। ये वाला सैंपल हमारा था कोट, तो इसने 902 सैंपल का कोट ही प्रिडिक्ट किए हैं, तो इट मींस करेक्ट प्रिडिक्शन हो रखे हैं। पर ये वाला थोड़ा सैंपल थोड़ा कंफ्यूज हो गया है, ये एक्चुअल में 50 सैंपल जो हमारे कोड थे, पर इसने थोड़ा प्रिडिक्ट कर दिया है इसका ये पुलोवर है, तो यहाँ पे मिस क्लासिफिकेशन हो गए हैं, तो इसीलिए हमारा एक्यूरेसी थोड़ा सा 91 तक आया है। पर ये वाले सैंपल भी 14 सैंपल कोड थे, पर इसने इसको प्रिडिक्ट किया है एज ए ड्रेस के फॉर्म में, तो ये भी गलत हो गया।
अगेन फिर से ये वाले जो सैंपल है ये 33 थे, कोड थे, पर इसने प्रिडिक्ट कर दिया शॉर्ट। इसने बताया कि ये क्या है, शॉर्ट है, पर एक्चुअली ये शॉर्ट नहीं थे, ये थे, ये कोट ही थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो दिस इज द हाउ यू विल स्टडी द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। जैसे कि अब इस केस में देखते हैं तो 723 सैंपल्स बहुत करीब प्रिडिक्ट हुए हैं 723 में ही, शॉर्ट में ही। पर यहाँ पे जो ये वाले जो सैंपल है 92 बहुत ज्यादा हो गए। ये एक्चुअल में थे, शॉर्ट थे, पर इसने प्रिडिक्ट किया इसको कोड के फॉर्म में। ठीक है, बाकी इसको कोई कंफ्यूजन नहीं है ये सैंडल वाले के साथ, और ये स्नीकर के साथ, और ये एंकल बूट के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर 9 वाले में कंफ्यूज हो गया और बता दिया इसने कि ये बैग है, पर ये 9 सैंपल बैग नहीं थे, ये थे शॉर्ट थे। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल स्टडी द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। आज के लिए बस इतना ही। सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कुछ डेटा सेट को डाउनलोड करेंगे मैनुअली, और उस मैनुअली डाउनलोड डेटा सेट्स को हम लोग यूज करके कुछ प्रिडिक्शन करेंगे। पर यहाँ पे हमारा अभी फिलहाल प्रिडिक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है इनबिल्ट डेटा सेट से, जो हमारा एमनेस्ट डेटा सेट्स है। पर अगली बार हम लोग यूज करेंगे कोई रियल वर्ल्ड के जो भी डेटा सेट्स है, उसको ऑफलाइन डाउनलोड करने के बाद गूगल कोलैब में अपलोड करेंगे, और उसी डेटा सेट से हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे कि हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। ओके, टिल देन, बाय बाय।